Varanasi, Banaras, Kashi. The abode of Lord Shiv and Goddess Parvati. The cradle of spirituality, Kashi is a city as old as time and legend. The earliest mention of Kashi is found in the Skand Puranas, named after the son of Lord Shiv and Goddess Parvati. It is widely believed that those who die on the holy lands of Varanasi attain salvation and freedom from the cycle of birth and rebirth. From washing away one's sins in the holy waters of the Ganga to seeking the blessings of Lord Shiv at the Kashi Vishwanath Mandir, Varanasi is one of the most sacred cities for Hindus. Welcome to Banaras, India's oldest surviving city and the cradle of spirituality. Today we are at the Kashi Vishwanath Dham. The Kashi Vishwanath Mandir is one of the most important worship places for Hindus dedicated to Lord Shiv. It is one of the 12 Jyotirlings in India. As per legend, Lord Vishnu and Lord Brahma were once having an argument over who's superior. To put an end to the fight, Lord Shiv manifested himself as a Jyotirling, an infinite column of light. Vishnu took the form of a boar and Brahma took the form of a swan, as each competed to find the source of the light beneath the ground and in the heavens above. The land where Lord Shiv manifested as the first Jyotirling is believed to be Varanasi, home to the Kashi Vishwanath Mandir, the shrine which harnessed the energy of Lord Shiv as a fiery column of light. The Kashi Vishwanath Mandir has been attacked by invaders throughout the course of history. From Muhammad Ghori of the Ghurids dynasty in 1194 to Aurangzeb in the 17th century, many attempts have been made to destroy the city of Kashi along with the Kashi Vishwanath temple. But Hindu kings like Raja Man Singh of Amber, Raja Todarmal and Bundela Rajput chief Bir Singh Deo made attempts to rebuild the mandir. The current structure of the Kashi Vishwanath temple was made in 1780 by the Queen of Indore, Rani Ahilyabai Holkar. The main temple has 3 parts in Nagara-style architecture, with spires converging on the top. The first part is a spire, the second is a golden dome with gold donated by Maharaja of Punjab Ranjit Singh, and the third part is a gold spire on the top of the Sanctum Sanctorum with a flag and a trident. The Shivling, enshrined in a silver altar, is found within this structure. This temple is surrounded by smaller shrines dedicated to gods including Vishnu and Kal Bhairav. Legend says the Jyotirling was hidden underneath this well of wisdom inside the temple to protect it from invaders. Despite the destruction, it is believed that the energy and power of Lord Shiv have kept both Varanasi and the Kashi Vishwanath Mandir protected. Today, people from across the world come to the temple to seek the divine blessings of the Lord. The significance of the Kashi Vishwanath Mandir was disregarded. Over hundreds of years, the mandir came to be surrounded by homes and shops amidst narrow lanes. Devotees had to walk through tiny, garbage-filled streets to reach the Kashi Vishwanath temple. This was the condition of the Ganga Ghats. Crumbling infrastructure and stench-filled waters welcomed pilgrims who sought to take a dip in the holy waters. But everything changed in 2019.
The Kashi Vishwanath Mandir has been connected to the holy Ganga river and the Ghats through the Kashi Vishwanath Corridor, a project that was conceptualized and implemented by Prime Minister Narendra Modi. Varanasi became the seat of Prime Minister Narendra Modi in 2014. In March 2019, months before the general election, PM Modi laid the foundation stone of the Kashi Vishwanath Corridor, marking the beginning of a grand new project. Since the Kashi Mandir was situated amidst homes and shops, over 300 properties were acquired by the Mandir Trust. 1,400 home owners, shopkeepers and tenants were rehabilitated by the government. The Kashi Vishwanath Corridor was built at a cost of Rs 800 crores. Earlier, the temple complex was restricted to 3,000 square feet. However, today, the temple as well as the corridor is spread across 5 lakh square feet. The government completed the entire project in a record 21 months. नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। The new temple corridor has 3 main paths. Beyond the main temple complex, which remain untouched, the revamped corridor is equipped to deal with about 1 lakh devotees on a daily basis. These are the various facilities inside the Kashi corridor today. Large resting areas have been created with mist fans and protection from the scorching summer sun. There is access to clean toilets, a guest house, locker facilities to keep your shoes and other belongings, benches for resting, clean drinking water, an ATM, lifts and escalators for the elderly, wheelchair assistance, a dedicated feeding room for mothers, and a help desk to provide translators. There's a food court as well, which accepts digital payments. The Mandir complex also has a multi-purpose banquet hall to host wedding celebrations and other religious events. हम आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा super darshan is very happy we are very happy to this is the first time we came बहुत मजा आया. Yeah, this is the first trip of the Kashi. From tomorrow onwards, I visit the Varanasi temple. This temple and the Vishalakshi temple, all the temple I have to visit it. But this temple is I'm very excited to visit the Vishwanath temple. This is very dramatic experience it was. It is said that during the construction of the Kashi Vishwanath Dham, more than 40 ancient temples were unearthed. All of these temples were restored while ensuring that the main structure remains untouched. The demolition resulted in the discovery of not just ancient temples but also idols and other artifacts that are believed to be over 1,000 years old. This is the famous Kashi Vishwanath corridor, which connects the Kashi Mandir to the holy Ganga river. The purpose of the corridor was to improve access from the Mandir to the Ganga Ghats by creating a clear, decongested path for pilgrims and tourists, which did not exist earlier. Devotees can make their way to the temple straight from the ghats of Ma Ganga. The corridor connects the temple to Varanasi's ancient Lalita Ghat, which leads to the Dasashwamedh Ghat to the right, and to the left is the Manikarnika Ghat. The Kashi corridor complex today is a perfect mix of the ancient with the modern. As one traverses through the large open spaces, a sense of quiet and calm take over. The newly revamped corridor now witnesses a footfall of an average 1 lakh devotees every day. From गुरुग्राम आए हैं परसों और हमें देखा हमने सब कुछ तो जैसा हमने सुना और मीडिया में देखा और पढ़ा हमें उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आकर. कॉरिडोर इज़ एक्सलेंट सुपर्ब और इस तरीके का भव्य जो कॉरिडोर है I am feeling blessed and honored that we got this corridor. Yes. It was very easy. Earlier times we just couldn't imagine
कि हम इतनी आसानी से दर्शन कर पाएंगे। Yeah, the mandir and the corridor is amazing. It was very rich experience. The darshan was very peaceful. It took hardly 10 to 15 minutes to take a darshana. Yeah, corridor is beautiful, amazing. All the services are very nice. It can't be explained in the words. It is really fantastic. There's beyond imagination. Whereas about 10 years, or not say 10 years, 5 years before, there is nothing. If somebody is coming from outside from Varanasi, he can't feel कि I have come Varanasi, I have to do the worship of the Kashi Vishwanath. But at this time, everything is fantastic. बहुत अच्छा लगा और हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी सुंदर व्यवस्था करी है उन्होंने, और इतना अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके, हम भावुक हो गए और बाबा का विश्वनाथ का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें ये देखने का संजोग मिला। पहले हम आए थे गली कूचलियों में और आज इतना गदगद स्वर हो रहा है, रोमांचित हो रहा है शरीर कि आज भगवान के दर्शन हमें कितने सुंदर सुलभ और आसानी से मिल रहे हैं। दर्शन बहुत अद्भुत रहा और कॉरिडोर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से व्यवस्थित मिली। हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, ना किसी प्रकार की ऐसी कोई अव्यवस्था है कि यहाँ कोई कूड़ा कचरा या कोई अव्यवस्थाओं का कुछ भी हमें ऐसा नज़र नहीं आया जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़े। The Kashi Vishwadham Corridor project was initiated by the Narendra Modi government in 2019. Work on the project continued even during the COVID-19 pandemic. There was criticism against the government for spending hundreds of crores of rupees on revamping a temple complex during one of the worst health crises that the world has witnessed in the last century. However, the one aspect that critics didn't take into account was the employment that has been generated by the Kashi Vishwadham corridor. Besides basic infrastructure and amenities, the Kashi corridor has shops selling puja material, this Amul booth, and popular Varanasi brands to buy suits, saris, and other trinkets. I'm currently at the Shankaracharya Chowk of the Kashi Vishwanath Dham corridor, and with me is Mr. Vineet Kool, who's one of the employees at several shops that have now been opened up in this particular part of the complex. Vineet ji, आपसे समझना चाहेंगे कि आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मैम मेरे को हो गया करीब 9 मंथ हो गया यहाँ पे। स्टार्टिंग मैंने बनारस फैब्रिक्स यहाँ पे की थी और हमारे सामने ये शिवोहम हो गया, गंगा वैली हो गया, ऑलरेडी खुला हुआ था, और ये धान का खुला हुआ था ऑलरेडी। इसके बाद ये शांति साड़ी ऊपर आया और उसके बाद अभी श्री श्री करके एक शॉप और खुली है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 6 या 7 दुकानें हैं। आप ये बताइए कि दिन कैसा रहता है, हेक्टिक रहता है, कितने लोग आते हैं रफली एवरेज? मैम एक्चुअली में लगभग करीब पर डे का हिसाब देखा जाए तो करीब 2 लाख से 3 लाख दर्शनार्थी यहाँ पे आता है रोज़। लेकिन इस वक्त गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मॉर्निंग तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन 11 बजे के बाद तो कस्टमर्स और दर्शनार्थी कम हो जाते हैं यहाँ पे। फिर शाम के टाइम करीब 5-6 बजे के बाद से लेकर 11 बजे तक ठीक ठाक भीड़ रहती है। तो आपके जैसे और कितने लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है इन दुकानों में? मैम टोटल यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉई हैं, एक दुकान में करीब 5 से 6 एम्प्लॉई काम करता है, और शिफ्ट यहाँ पे 2 शिफ्ट चलती है, सवेरे मॉर्निंग से 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक। और उसमें हम लोग 3 आदमी सवेरे रहते हैं और 3 आदमी शाम को रहते हैं। तो इसमें हर दुकान का ये सिस्टम बना हुआ है कि 3 एम्प्लॉई सवेरे रहेंगे, 3 एम्प्लॉई शाम को रहेंगे। तो कुल मिला के 50 से 60 एम्प्लॉई टोटल एम्प्लॉई रहते हैं यहाँ पे। और ये जॉब आपको कैसे मिली, कैसे पता चला, और ये पूरा सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैम एक्चुअली में हमारे एक रिलेशन में थे, तो उन्होंने ही बनाया यहाँ पे बनारस फैब्रिक में। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हमारी एक शॉप खुल रही है कॉरिडोर के अंदर, क्या आप उसमें जॉब करेंगे? तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगा सर। तो इसीलिए वहाँ पे मैं पहुँच गया। Each shop employs at least 6 people who work in 2 shifts, generating employment for over 50 workers. The onus of keeping the Kashi corridor clean falls upon an estimated 30 cleaners. The security of the temple is looked after by Uttar Pradesh Police along with a private security company that has deployed 130 security guards. And this is just inside the temple. A clean Ganga river has improved the scope of boating as a family outing in Varanasi, giving a boost to this age-old economic activity. In the past 2 years, after the completion of the Kashi Vishwanath corridor, the city has witnessed 13 crore tourists. In 2023, Varanasi became the most visited city of Uttar Pradesh with over 8 crore visitors between January and September.
The average money that is spent by a tourist in Varanasi today has a direct bearing on the locals of Banaras who've been running their businesses here for decades and generations. The increase in tourist footfall means an increase in economic opportunity. From hotels to homestays, restaurants to bhojnalayas, local vendors to patriwalas, the Kashi Dham project has transformed the lives beyond the boundary walls of the corridor. यहाँ तो हम जन्म से हैं काशी में ही, और हमारा ये दुकान पहले पुराना 25 साल पहले का है, और जब ये कॉरिडोर बना है तो 3 साल से इस जगह पे हम लगा रहे हैं। पहले यहाँ की गलियाँ सकरी थी, लोगों को आने जाने के लिए लाइनें लगानी पड़ती थी, लंबी लंबी भीड़ अधिक रहता था। अब बनने के बाद जो है सुविधा ये हो गया है कि रास्ते चौड़े हो गए हैं, लोग आराम से दर्शन करने के लिए आते जाते हैं। हाँ, व्यापार में फ़र्क तो पड़ता है भाई, हम लोगों का जीवन जीने के लिए तो एक जरिया हो गया है कि चलिए हम लोग दुकान लगा रहे हैं, हम लोगों की जीविका चल रही है, हम लोग का बाल बच्चे परिवार सब देख रहे हैं हम तो देखिए अब इस समय आए हैं 7 बजे, 11 बजे बंद कर देते हैं, तो इतने देर में चाहे 700 मिले चाहे 1000 मिले, ज़्यादा अगर भीड़ रहता है 1000 भी मिल जाता है, 1200 भी मिल जाता है, कम रहता है तो कम मिलता है। अब सरकार भाई मदद ये करे, जैसे अब अगर वो सुविधा दे सकती है यहाँ कि हाँ भाई हम लोग दुकान लगाए, जैसे धूप है, धूप में तो हम लोग जल ही रहे हैं, तो अगर सरकार सुविधा दे कोई कि हाँ हम लोगों की दुकानें लग जाएँ, यहाँ पे थोड़ा छाया मिल जाए तो अच्छा है। शायद जी आप काशी में कब से हैं और क्या काम करते हैं? हम यहाँ पे, मेरी उम्र 36 साल है, 36 साल से हम यहाँ रहते हैं और काम हम करते हैं ये माला फूल का। तो पिछले 10 साल में काशी में क्या बदला है? काफ़ी कुछ बदला है यहाँ पे, जैसे कहने का मतलब है कि एक रोज़गार मिल गया है माला फूल का, और परमानेंट जैसे होता है, पहले कुछ और काम कर रहे थे, अब जो है तो यही करते हैं, तो पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं। कॉरिडोर बनने से व्यापार में फर्क आया? कॉरिडोर बनने से ये हुआ है कि जो बाहरी लोग थे उनको व्यापार मिल गया है, साड़ी व्यापारियों को व्यापार मिल गया है, बाहरी बहुत टूरिस्ट आते हैं, उस वजह से देखिए तो काफ़ी तरक्की हुई है। 25 साल हो गया, हमारा जन्मभूमि इसी जगह भैया है। अरे रोड बढ़िया भैया है, बिजली पंखा आराम से हम लोग रहते हैं। कार बांधने से परेशान है, साड़ी बीन रहते हैं, साड़ी का धंधा चौपट हो गया, अब ये रिक्शा चलाने लगे, बहुत फ़र्क आया है। हम लोग की कमाई रिक्शा चलाने से बाल बच्चों का पेट पाल लेते हैं। सरकार ये मदद करे कि हम लोग की रोजी रोजगार चलता रहे। हो क्या, काशी में तो मेरा जन्म हुआ है, दुकान मेरे सामने छोटा सा है, जो छोटी सी दुकान है वो 25 साल पुराना है, ये दुकान अभी नया लिया गया किराए पर। 10 साल में काशी नहीं पूरे बनारस का रूप बदल गया है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से इसकी पूरी व्यवस्था बदल गया है, और जो यात्रियों को तकलीफ होता था शुरू में दर्शन करने के लिए, वो आज तकलीफ मुक्त हैं। व्यापार में बहुत फ़र्क है, यात्री लोग आते हैं 10 का 20 का 50 का 100 का प्रसाद लेके जाते हैं, तो जहां हम लोग 10 रुपये मुँह देखते थे आज वहाँ 100 का मुँह देख रहे हैं। हम तो पैदाशी मेरी इसी जगह की है, मैं शुरू से स्टॉल लगा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर बहुत चीज़ बदल गई है, रोड अच्छी बन गई है, कमाने उमाने का जरिया अच्छी हो गई है। जो पहले 200 कमाते थे अब 400-500 कमाते हैं। आप काशी में कब से हैं और ये स्टॉल बचपन आपके से पास कब से है? हमारे पिताजी पहले लगाते थे, अब हम लगाते हैं, बचपन से आते हैं। पिछले 10 साल में इस इलाके में क्या बदला है? बदलाव ये कि रोड बहुत चौड़े हो गए हैं, यहाँ बहुत भीड़ आती है, यात्री बहुत अच्छे खासे आते हैं। बदलाव ये सुंदरता बहुत हो गई है, पहले बहुत गंदगी होती रही, अब वो गंदगी नहीं है, अब साफ़ सुथरा रहा है। सीवर लाइन चेंज हो गया, पानी भर जाता रहा पहले, अब वो सब चीज़ नहीं होती है, पानी भरता ही नहीं है, कितनी भी बारिश होती है, उस तरह के बदलाव हैं। साफ़ सुथरा होने से पब्लिक बहुत अच्छी आती है। और आप क्या चाहेंगे, गवर्नमेंट आपकी कैसे मदद करे? गवर्नमेंट से यही चाहेंगे हम लोग की दुकान यहीं लगी रहेगी, हम लोग की दुकान ना हटा दें, क्योंकि इसके अलावा कहीं जाएंगे कुछ हम लोग को मिलेगा नहीं, ना खाने को ना कमाने को। ये तो हम समझ लीजिए 2022-21 से हम फुटपाथ पर दुकान लगा रहे थे, फिर 22, 23, 24, 23 तक हम फुटपाथ पर 22 तक थे, फिर उसके बाद दुकान की रेंट पर लिए हैं। इतनी कमाई हो जाती कि रेंट भर पाते हैं? हाँ, मैं सुबह 5 बजे भोर में दुकान खोलता हूँ, रात को 1 बजे बढ़ाता हूँ। मेहनत एकदम ज़बरदस्त करता हूँ, इसीलिए मेरे भगवान हमको सुनते हैं, हमको देते हैं। मेहनत से पीछे नहीं भागते हैं। विकास जी, आप काशी में कब से हैं और स्टॉल कब से है? स्टॉल तो ये है 30 साल से है, और व्यापार यहाँ पर दुकान लगाते 30 साल से। पिछले 10 साल में इस इलाके में क्या बदला है? अरे कॉरिडोर बना इतना अच्छा, गंगा घाट इतना अच्छा बन गया है, ये रोडें सारे इतने अच्छे से बन गए हैं। पहले तो पूरा ख़राब था, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से ये रोड हम लोग का अच्छा हो गया है।
और लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब तो यहाँ पर वो बनने वाला है क्या रोपवे, अब तो वो भी बन जाएगा तो आप सबके लिए अच्छा हो जाएगा। जो कॉरिडोर बना है, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, हाँ। व्यापार में कुछ फर्क आया? बहुत फर्क है, क्यों नहीं फर्क है, यहाँ फर्क तो पूरे पटरी वाले यहाँ से कमा के लालो लाल हो गए हैं। हाँ, कैसे लालो लालो? ये कॉरिडोर जब से बना तब से भरी यहाँ से जनता आ रही, भीड़ इतनी भीड़ होती है कि लोग फुर्सत नहीं पाते कमाने से। आपकी क्या तरक्की हुई? दीदी हम भी अपना मकान लिए हैं, यहीं से कमा कर, पटरी से ही कमा कर अपना मकान बनाया है, और मेरा भाई भी लिया है। कल मेरे भाई की रजिस्ट्री हुई है मकान का, 25 लाख का हमने कल एक मकान लिया है पटरी से कमा कर। कासिम में तो हम लोग जन्मे ही हैं और दुकान करीब मेरे यहाँ 10 साल से तकरीबन। बहुत कुछ बदला हुआ है, बहुत टूरिस्ट आते हैं, कारोबार काफ़ी बड़ा है और लोग यहाँ पे अब खुश भी हैं। कमाई का सूत्र बड़ा है काफ़ी, सड़क भी अच्छी है, बिजली पानी भी अच्छी है, सब अच्छा हुआ है। नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, फ़र्क तो बल्कि बड़ा है, मतलब दुकानदारी बड़ी है लोगों की। यहाँ पे नौका विहार जैसे लोग हैं, नाव चलाते हैं, यहाँ जो दुकानदार हैं, यहाँ के लोकल सारे लोग का रोज़गार बड़ा है। खाली समस्या एक ही चीज़ की है, टोटो की बहुत ज़्यादा समस्या है बनारस में, जो काफ़ी दिक्कतें होती है यहाँ पे। उसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मेरी पैदाइशी यही है और कार्य करने में ये है कि पहले अपेक्षा यहाँ का इनकम बहुत अच्छी हो गई है। हर आदमी खुश है, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे पटरी वाला हो, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कॉरिडोर बना दी है कि यहाँ पर पर्यटक इतने ज़्यादा आते हैं कि पर्यटक की दुकानदारी बहुत अच्छी है, तो किसी को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। पिछले 10 साल में इस इलाके में क्या बदला है? बदला तो बहुत कुछ है, सड़क चौड़े हुए हैं, हर चीज़, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका बदलाव नहीं हुआ है। घाट से लेके आप ज़्यादा नहीं, पूरा इलाका बनारस का जो शहर है 5 किलोमीटर के अंदर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा अगले 10 साल में क्या था अभी क्या है। और उम्मीद करते हैं कि 24 में ये चुनाव के बाद और बदलाव आएगी और अच्छी खासी बदलाव आएगी। हम लोग थोड़ा परेशान इसलिए रहते हैं कि जैसे कि नगर निगम है, ये लोग थोड़ा सा हम लोग को डिस्टर्ब ज़्यादा कर दिए हैं कि दुकान नहीं लगेगी, यहाँ पाथवे है तो चलने के लिए है, जो कि ये पहले नहीं था। पहले ये रहा कि कोर्ट ने भी हमको आदेश दिया था, हाई कोर्ट ने, 27 साल तक हम लोग बरकरार थे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। बीच में थोड़ा सा दिक्कत आई है, वो भी सॉल्व करने का कोशिश किया जा रहा है, हो जाएगा। वेद, आप काशी में कब से हो और ये रेस्टोरेंट कब से? ये 50 इयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट है। आप काशी में कब से? मैं काशी में 15 साल से हूँ। काशी में पिछले 10 साल में कुछ बदला है? हाँ, बहुत से डेवलप हुए हैं, सड़कें बने हैं, गलियाँ डेवलप हुई हैं, हर एक चीज़ न्यू जनरेशन की हर एक चीज़ आई है, ये सब चीज़ डेवलप है। कॉरिडोर बने हैं, कॉरिडोर से भी हम लोग को प्रॉफिट मिला है, हर एक चीज़ है। तो जो कॉरिडोर बना है उससे क्या फ़र्क आया बिजनेस में? कॉरिडोर से बनने से टूरिस्ट आए हैं, टूरिस्ट से हर एक चीज़ें हुई हैं। और आप लोग रेस्टोरेंट में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? एम्प्लॉयड में हमारे रेस्टोरेंट में कम से कम 34 पीपल्स हैं। आप क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? और डेवलप करें और गरीबों की सहायता और करें, हर एक चीज़ करें। काशी में तो हमारा जन्म ही हुआ है। हाँ, पूरा परिवार रहता है, 3 भाई हम लोग हैं, पिताजी नहीं है, माता है। भाई हमारा माला फूल का दुकान है। काशी में बहुत कुछ बदला हुआ है, हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया, रिंग रोड बन गया, 4 लेन बन गया बनारस में, कई ब्रिज अधूरे पड़े हुए थे वो बन गया। व्यापार में बहुत वृद्धि हुआ है बनारस में, तो पहले तो हजारों लोग आते थे, अब तो लाखों की संख्या में आते हैं बनारस में। हम तो यही कहेंगे मोदी सरकार बार बार आए भाई, जब हमारा विकास हो रहा है बनारस शहर का, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 100 ईयर्स पुराना शॉप है और जब हमारा जन्म है। हाँ, बहुत कुछ बदला। 10 साल पहले काशी समझ लीजिए कुछ नहीं था, व्यापार भी उतना अच्छा नहीं था। जब से मोदी सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तब से काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ हुआ है, समथिंग 100% हो। अरे बहुत फ़र्क आया है, कॉरिडोर बनने से टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा आते हैं। पूरे इंडिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ से लोग यहाँ नहीं आते। यहाँ पे समझ लीजिए 80% कॉरिडोर की वजह से ही व्यापार होता है। कॉरिडोर का जो रूट है तो वो गेट को पूरी तरीके से नो एंट्री में लगाए, जिसकी कोई बड़ी गाड़ी वहाँ से ना आ पाए, स्कूल बस के अलावा। मैम होटल गंगे जी में 2016 से है, वाराणसी में मेरा पैदाइशी है, वानन वार्ड वाराणसी है। होटल अपना मैम
3 स्टार होटल है। टोटल यहाँ पे 55 कमरे हैं, एक बैंक्वेट है, 85 चेयर का रेस्टोरेंट है और बाकी बेसमेंट में अपनी पार्किंग है। वाराणसी में पिछले 10 साल से मैडम बहुत कुछ बदला है, नो डाउट। जैसे देखा जाए तो यहाँ के रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं। रोड अच्छे होने से लोकल टूरिस्ट भी यहाँ पे बढ़े हैं मैम, और अदर बाकी के भी बढ़े हैं टूरिस्ट, नो डाउट मैम। काशी कॉरिडोर बनने से हमारी जो बिजनेस ग्रोथ हुई है 30 से 35% की ग्रोथ हुई है। साउथ इंडियन यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं जब से काशी की कॉरिडोर बना है। आफ्टर कोविड देखा जाए तो कोविड में हम लोग के बिजनेस एकदम खत्म हो चुके थे, लेकिन आफ्टर कोविड कॉरिडोर का ओपन हुआ, उससे 35% की ग्रोथ बिजनेस में हुई है हम लोगों की। गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ के जो सड़क को लेके, थोड़ा चौड़ीकरण को लेके एक बार काम कर दे, जिसमें रोपवे आ रहा है, थोड़ा सा रोपवे जो खाली जगह वहाँ पे आए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट से हम लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। It seems Bijli, Pani, Sadak and Swachhata, the 4 key pillars towards living a life of dignity, have been delivered to the residents of Varanasi, India's historic city. A landmark ropeway project has been announced in the next phase of Kashi's development. The ropeway will span over 3.85 kilometers, including 5 key stations. With a capacity of 3,000 people per hour per direction, the Kashi Ropeway project promises a swift 16-minute ride from Varanasi Cant to Gadolia intersection. The revamped Kashi Vishwanath Dham is not just a temple. A walk along the newly paved lanes of Kashi gives a clear glimpse into the hundreds of lives impacted by the corridor. Bureau Report, NewsX.